Students, welcome again in digital classes. And today I am here for class 8. Okay, dear student, in previous video, okay, otherwise you can see we have completed two chapters of class 8. Chapter first, rational number, and chapter second, linear equation in one variable. Two chapters are completed, and all the types of questions I told you in all the previous videos. Again, if you are getting any problem, so you can discuss with me. Okay, write your proper comment, send your doubts, and today we shall learn about the quadrilaterals. That is chapter number 3rd of your textbook. Okay, chapter number 3rd, quadrilateral. Quadrilaterals. So first, in this chapter we shall learn about the only and only for quadrilaterals. What is quadrilateral, types of quadrilateral, about the angles, about the sides, and the properties of the types of quadrilaterals. Okay, relation between them. So I think this is a huge topic for you. Okay, and if this chapter is related to the geometry, right? Quadrilateral, this is the geometry shape, four-sided polygon. So before the reading this chapter, before the teaching this chapter, okay, study this chapter, we should learn, we should know about where we will use this chapter in our daily life. Where we will use. Okay, dear students, generally you know, so you have seen that in our house tiles, marble tiles, okay, and shape of football, right, and on the road, the side, road corner side, okay, indication of road, डायरेक्शन. ओके, मतलब अपने डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी फिगर्स होती हैं जो किससे बनती हैं, पॉलीगन से बनती हैं. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन से होता है. तो पहले हम किसको स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे पॉलीगन के बारे में बताएंगे कि ये पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन्स. Okay, so we can say this is very important topic for us. Okay, and this topic we will use. Okay, otherwise you can say we can use in your daily life, for in construction, for in also in decoration also you can use. जनरली आप क्या करते हैं, कोई फिगर आप कोई भी मतलब कि आप फिगर बनाते हैं, राइट, कोई आप डायग्राम बनाते हैं, डेकोरेटिव कोई आप फ्लावर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आप उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल का यूज श्योर करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखे होते हैं, चाहे आप काइट का आप यूज़ करें या आइसोसेलेस का यूज़ करें. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, राइट, या फिर आप स्क्वायर का यूज़ करें, रेक्टेंगल का यूज़ करें, रोम्बस का यूज़ करें. बट इन डेकोरेशन, फॉर डेकोरेशन आइटम we can use quadrilaterals, right? And in this chapter first we shall learn about the polygons, types of polygons, and after that we shall learn about the angles, interior angle, okay, and interior angle, exterior angle, and after that types of polygons also. Okay, different type of polygons are there according to angle and according to sides. So first we have to define here what is the definition of polygon. Polygon होता क्या है, right? Polygon is a closed figure which is bounded by three and more than three sides. नोट कर सकते हैं आप इन डेफिनेशंस को. पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्लोज फिगर होती है
जो कि क्या होती है, बाउंडेड का मतलब बनाई जाती है, मेडअप, ओके, बनाई जाती है किससे, 3 and more than 3 साइड्स, 3 साइड से। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं कि 3 साइड क्यों लिया बेटा। सिंपल है, इफ़ वी चूज 2 साइड सो वी कांट फ्रेम ए क्लोज फिगर। आप 2 मैजेस्टिक लें, उनको आप ज्वाइन करें कॉर्नर पॉइंट से, आपको क्लोज फिगर नहीं मिलेगी, यू विल गेट ओपन फिगर। सो फॉर ए क्लोज फिगर वी हैव नीड 3 majestics, right? So 3 line segment is necessary to make a figure, closed figure, right? So polygons, a closed figure which is bounded by 3 and more than 3 sides, 3 and more than 3 sides is called polygon. There are different types of polygons according to the sides. Means a polygon having 3 sides, according to sides you can put the name, sides and name, okay. I am writing here, suppose that a figure, closed figure having 3 sides, so what we will write the name, then you can say this is a triangle, right? 3 साइड वाले को हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। 4 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सा, 7 साइड, नंबर ऑफ साइड इफ 7 देन वी कॉल हेप्टा और सेप्टा। शॉर्ट में लिख दिया मैंने बेटा यहाँ पे, हेप्टागन, हेप्टागन और सेप्टागन, ओके। 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन। So according to the number of sides we can put the name of quadrilaters, sorry, polygons. 3 side that is called triangle, 4 side that is quadrilateral, 5 side that is pentagon, 6 side hexagon, 7 side heptagon, 8 side octagon, 9 side nonagon, 10 side decagon. Different types of, right? So here we have made the some triangle, quadrilateral, pentagon, okay, hexagon, dear student, no, okay, look here. So the line segment, these are the called sides. आप इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं। साइड क्या होते हैं, राइट? साइड क्या होती है, इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट मीन्स वर्टेक्स मीन्स व्हेन 2 साइड्स एडजॉइन ईच अदर, जहाँ पे 2 साइड क्या करती है, एक दूसरे को मीट करती है, मिलती है 2 साइड, जैसे साइड दिस एंड दिस जॉइन एट हियर, ओके। सो दीज आर द, दिस इज द वर्टेक्स, राइट, ऑफ द फिगर. So you can write these definition in according to your language, no problem, okay. And in angle, interior angle, okay, according to sides, angle between the sides is called interior angle. Means इन sides के बीच का जो एंगल आता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल. ये इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ओके. सो अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ साइड्स देयर आर अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एंगल्स ऑल्सो. 3 साइड है, 3 एंगल है, 4 साइड वाले में 4 एंगल होंगे, 5 साइड में 5 एंगल होंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ एक्सटीरियर एंगल, ये तो बात हो गई इंटीरियर एंगल की. एक्सटीरियर एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस. एक्सटीरियर मीन्स व्हेन वी प्रोड्यूस, व्हेन वी एक्सटेंड द साइड ऑफ ए फिगर. कोई भी साइड आपको, कोई भी फिगर है उसकी एक साइड को एक्सटेंड करना आपको, जस्ट एक्सटेंड मीन बढ़ा दो, आप प्रोड्यूस कर दें आप. सो द एंगल मेड फ्रॉम द आउटर साइड,
बाहर की तरफ जो बनाया गया एंगल है वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. So you can write a proper definition. Okay. Now, in previous class I told you also about the adjacent sides, adjacent angles, adjacent sides and adjacent angles. Okay. Look here. For quadrilateral I am telling you, because this is our topic name, chapter number name. So for quadrilateral I am telling you, suppose that this is the quadrilateral A, B, C and D. Okay. How can we define adjacent sides? Adjacent sides. Okay. So adjacent sides, you can say sides they have common vertex, right? Right? No. Adjacent sides means sides they have common vertex. नोट कर लेना इस चीज को. मीन्स कॉमन वर्टेक्स है. सपोज दैट आई एम टेकिंग ए कॉमन वर्टेक्स ए. कौन सा ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ए वर्टेक्स ले रहा हूं. सो फ्रॉम ए हाउ मेनी लाइन्स, हाउ मेनी साइड्स आर पासिंग, हाउ मेनी साइड्स आर गोइंग, कितनी साइड्स निकल रही है. ओके. प्रोड्यूस कितनी हो रही है. सो फ्रॉम ए से कौन सी हो रही है, ए बी, और कौन सी हो रही है, ए डी. सो यू कैन से ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स. ओके. इफ यू टेक ए कॉमन वर्टेक्स एज डी, सो डी से कौन सी हो रही है, डी ए एंड डी सी. इफ यू टेकिंग सी, सो सी से पासिंग कौन कौन सी हो रही है, सी डी एंड सी बी. सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट साइड्स. सेम एज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल ये किसके लिए हुआ, एडजेसेंट साइड्स के लिए. एडजेसेंट एंगल के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ. एडजेसेंट एंगल मीन्स हैविंग कॉमन आर्म, कॉमन साइड. टू एंगल्स इज कॉल्ड, नोट कर लेना यहाँ पे. एडजेसेंट साइड्स में कितनी साइड्स आती है, टू. ओके. इसमें भी कितने आएंगी, टू. टू साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, एंड टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन साइड. कॉमन साइड मीन्स ये साइड आपने सपोज दैट यहाँ पे साइड ले लिया आपने ए बी. ए बी साइड ये है, इस पे कितने एंगल बने, ए पे एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है, राइट. सो एंगल बी ए सी, सॉरी एंगल बी ए डी एंड एंगल ए बी सी, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स. सो दिस कॉमन साइड आई एम टेकिंग हियर ए बी. नाउ यू कैन टेक बी सी. So which angle you can get? Now note down. If you taking common side as CD, so number of angles and what is the relation? इस वे में आपको क्या करना है, सबको राइट करना है. ओके. ये थी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर से तो अभी भी हमने पहुंचे नहीं. अभी तो हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल पॉलीगन्स की. डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड vertex, sides, interior angle, exterior angle, adjacent sides and adjacent angles. How to write and how to represent adjacent sides and adjacent angle. I hope you are getting all the points, right. Next form, curve, simple curve. Okay. Okay. Next topic is our curve. So there are two type of curve, open curve and closed curve. Open and type first open and type second closed. So how can you identify the given curve is open and the given curve is closed? Simple term. Open means begin point, short में बता रहा है बेटा, begin and end points never meet. सिंपल है.
ओपन कर्व में जो स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, बिगन मीन्स आप क्या बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही नहीं मिलते, ओके। और क्लोज कर्व में बिगन पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या होते हैं, कौन साइड आप बोल सकते हैं, अदरवाइज बोल सकते हैं मीट ईच अदर, मीट ईच अदर, इस वे में आप राइट कर सकते हैं। डेफिनेशन आप एग्जाम्पल नोट मैंने एग्जाम्पल्स आपको अभी बताने और डेफिनेशन राइट कर दी, राइट। देखिए आप, दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज द स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट, राइट। सो बोथ आर डिफरेंट, सो दिस इज अ ओपन कर्व, राइट। अगेन लो, ये कर्व आप देखेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, कौन साइड, एक ही है। तो ये कौन सा हो गया, क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, राइट। और देखें क्या है, ओपन, क्लोज, राइट। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, कर्व को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओपन कर्व कौन सा होता है और क्लोज कर्व कौन सा होता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी shall learn about for the remaining term of this topic about the convex, concave polygons and interior angle and exterior angle of partilete. Thank you for watching.